ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम G20 पर है विश्व कुंभ, और हम आपको हर उस पहलू से अवगत करा रहे हैं जो G20 शिखर सम्मेलन में देश दुनिया से सरोकार रखते हैं, आम आदमी से सरोकार रखते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था से सरोकार रखते हैं, जलवायु से सरोकार रखते हैं। उन सब मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनके क्या मायने हैं, क्या संदेश है इस शिखर सम्मेलन का। जाहिर सी बात है 37 पेज का जो दिल्ली G20 का साझा घोषणा पत्र, उसमें कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका सरोकार दुनिया से है। 37 पेज का जो घोषणा पत्र है उसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं और इसमें तमाम मुद्दों को उठाया गया है। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर पूरा जोर दिया गया है। अवधारणा उस पर केंद्रित है। सभी देश सतत विकास लक्ष्यों पर मिलकर काम करेंगे, इस बात पर जोर है। जो वसुधैव कुटुंब की बात की जाती है, 37 पेज का ये घोषणा पत्र, इसमें तमाम मुद्दे ऐसे उठे हैं। उसमें आतंकवाद का मुद्दा भी है, यूक्रेन से जुड़ा मुद्दा भी है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की जब बात की जाती है, जिस पर भारत का खासा जोर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वसुधैव कुटुंब को लेकर जिस प्रकार से दुनिया को साथ चलने का उन्होंने शिखर सम्मेलन से संदेश दिया है, उसकी झलक कहीं ना कहीं इस घोषणा पत्र में देखने को मिलती है। Absolutely, Manoj ji. And in this edition, we are also joined by illustrious guests. Joining us through virtual platform, Mr. Jitendranath Mishra, former ambassador. Also joining us, Dr. Gulshan Rai, former National Cyber Security Coordinator, Government of India. And also joining us, Professor Swarn Singh, Chairperson, CIPOD, JNU. I welcome all of you to Sansad TV and thank you so much for joining us. And Ambassador Mishra, let me begin the program with you. The G20 New Delhi Leaders Declaration has called for a comprehensive, just and durable peace in Ukraine and urged member states to refrain from the threat of use of force to seek territorial acquisition or act against the territorial integrity of any state. The declaration also stressed the use or threat of use of nuclear weapons to be inadmissible. The sense certainly is that today's era is not of war. Over to you, sir. Thank you very much for this invitation, Kriti ji and Manoj ji. जी. Well, first of all, let me congratulate our great nation, our government, and congratulate all Indians, of course, on this successful outcome. Now, when we look at the declaration, there are 5 references to Ukraine, no reference to Russia by name. And it's weaker than the formulation on Ukraine at the Bali summit as far as any kind of implicit criticism, even if not condemnation, I would not use that word, of Russia is concerned. So therefore, it's a very clear signal to the world that the Europe-led or the West-led desire for condemnation of Russia explicitly in multilateral fora is not working, and the global South is getting a slight edge in its quest for greater influence, if not power, in the international system. That's what it means. And then when we talk about territorial integrity and not attacking other countries, that is an implicit, that was your second point, that is an implicit message to Russia, implicit, without naming Russia, but also a clear message to China. Let's not forget it, and others perhaps, but certainly to China implicitly. It's very subtle, and that's because China is becoming much more assertive on the world stage. And I will mention the map incident after India led the disapproval, the protests when China issued the new map. Significantly, with India, immediately Malaysia, followed by the Philippines, followed by Vietnam, followed by Taiwan, followed by Japan, and also by Nepal. So there is a kind of a coalition of the willing developing to call out Chinese aggressive behavior in the Asia-Pacific. That is the implicit message in my reading of this document. I hope I am not overinterpreting it, and I hope that is correct also. But that is the implicit message, and India that talks about being a Vishwa Guru is in this instance showing leadership
which none of the Western countries have shown. They haven't shown up on criticizing China in the South China Sea disputes. So we are seeing a link between aggressive behavior in Ladakh and across the line of actual control by China, and in the South China Sea, and in Taiwan, and Nepal, very interestingly. So I think that's a success of Indian diplomacy. It's very subtle, but that's the unwritten message. जी बिल्कुल। स्वर्ण सिंह जी, मेरा सवाल आपसे जो G20 का दिल्ली का साझा घोषणा पत्र है उसको लेकर है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई जानना चाहता है, इसके दो पहलू हैं। अगर इस G20 शिखर सम्मेलन की मैं बात करूं, एक है अंतर्राष्ट्रीय वो मुद्दे हैं, वो पहलू हैं, और दूसरा पहलू है भारत के हित के अनुसार ये कितनी कामयाब हम माने इस साझा जो घोषणा पत्र भर के सामने आया है, भारत के कौन से हित इसमें साधे गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर होने वाला है। देखिए, भारत की जो बदलती हुई प्रभावी छवि है अभी विश्व स्तर पर, उसमें ये G20 का शिखर सम्मेलन एक बहुत बड़ा पड़ाव के नजरिए से देखा जाएगा, या एक बहुत बड़े अवसर के नजरिए से देखा जाएगा, क्योंकि भारत की छाप जो है वो हर पहलू में नजर आती है। और भारत की छाप में भी भारत ने लगातार कोशिश की है कि जो भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जो भारत का दृष्टिकोण है, भारत का लोकतंत्र है, भारत का जो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है विकास को लेकर, वो सब भारत के हर पहलू में शिखर सम्मेलन में नजर आना चाहिए। चाहे वो किस तरह से मेहमान नवाजी होगी, किस तरह से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, या किस तरह से और दूसरी बैठकें और उनसे निकलने वाले आउटकम्स नजर आ रहे हैं। दो बड़ी असाधारण बातें आपने आज के दिन में ही देख ली कि पहले 10 मिनट में ही एक और स्थायी सदस्य को जोड़ा ही नहीं गया, उसको वहां बिठाया गया और अफ्रीकन यूनियन को 21वां स्थायी सदस्य बना दिया गया। अक्सर बहुराष्ट्रीय संगठनों में बहुत लंबा समय लगता है कि नए सदस्यों को किस तरह से जोड़ा जाए। जब सर्वसम्मति बनती है उसके बाद भी समय लगता है कभी कभी, ये कहकर के अगले शिखर सम्मेलन से उनको बुलाया जाएगा। दूसरी बात, घोषणा पत्र भी ठीक इसी तरह से अक्सर बहुराष्ट्रीय संगठनों में, सम्मेलनों में आखिरी सत्र तक तय नहीं होता, आखिरी सत्र का समय बढ़ाया जाता है कि अभी सहमति बन रही है, घोषणा पत्र जारी होगा। आप देखें कि आज सुबह तक ये अटकलें लग रही थी कि शायद चेयरमैन का स्टेटमेंट ही हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी, यहाँ कहा जा रहा था कि तालमेल नहीं बन पा रहा है। और पहले सत्र के अंत में देखें, उन्होंने, प्रधानमंत्री ने एक घोषणा पत्र को न केवल जारी किया, फिर उसका साइज देखें, इतना बड़ा है कि पिछले जितने भी घोषणा पत्र हैं उनमें जो सबसे बड़ा होगा उससे दुगने से बड़ा ये घोषणा पत्र एक तरह से है। कितनी बातों पर सहमति बनी, ये जैसे अभी कहा गया कि हाँ, कुछ मुद्दों पर शब्दावली, भाषा में थोड़ा सा बदलाव आया है, वो समझ आता है कि वो क्यों बदलाव आया है, पर उसको रखकर सामने क्या बाकी सब मुद्दे जिन पर सर्वसम्मति बन रही थी उनको छोड़ा जा सकता था। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक निर्णय हुआ कि यदि शब्दावली बदलने से, और कुछ नई चीजें भी ऐसी हैं जो शब्दावली बदलने से रूस के हित में जाती हैं, जैसे रूस भी अब बात करता है कि उसे भी अपने फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो वो बात कही गई उसमें। तो ऐसा नहीं कि शब्दावली बदलने से केवल पश्चिमी देशों को फायदा हुआ हो, रूस को नहीं हुआ हो। तो शब्दावली बदलकर भी जो बात कही गई है उसमें मौलिक तौर पर आप देखें, घोषणा पत्र में जो इतनी जल्दी से जारी हो गया, भारत की छाप है, ग्लोबल साउथ की छाप है। और दूसरी बात जो बहुत ही अच्छी है कि अभी ये घोषणा पत्र जो है वो जारी हो चुका है, रास्ते से हट चुका है, तो भारत का पूरा ध्यान अब इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, अगले आने वाले जो आज का दिन और कल का दिन है उस पर लगातार लगा रहेगा। पहले से ही देखें, आज के दिन में ही इंटरनेशनल बायोफ्यूल्स कोएलिशन को घोषणा हो गई, 11 देश जुड़ गए, उसमें और भी देश जुड़ेंगे। फिर यूएस, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई वो जारी हो गई। 15 बैठकें बायलैटरल लेवल पर होने वाली हैं, उनमें कई संधियां होने वाली हैं, समझ साझा होने वाली है। तो ये जल्दी से इतना बड़ा घोषणा पत्र जारी करना अपने आप में एक तरह से असाधारण बात है, पर उसके बाद भारतीय नेतृत्व को समय मिलता है
कि ये सारे राष्ट्राध्यक्ष वापस अपने अपने देश जाकर किस तरह से जो सहमति बनी है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और मुझे लगता है कि उसके बाद भी भारत की जो अध्यक्षता है वो नवंबर के अंत तक है। उसके बाद ट्रायोका फॉर्मेट में भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका लगातार अगले साल भी काम करेंगे। तो ये जो छाप है भारत की कोशिश के ग्लोबल साउथ को जोड़ा जाए, उसके नतीजे क्या हैं कि ग्लोबल आज जो G21 है वो डाइवर्सिफाई होता है, डेमोक्रेटाइज होता है, इंक्लूसिव बन जाता है। और ये दौर पूरा ऐसा है कि ग्लोबल साउथ के देश ही अध्यक्षता करने वाले हैं। इंडोनेशिया, अब भारत, अगले साल ब्राजील और फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। तो भारत ने जो ये इसको ढांचे को और सोच को, नजरिए को, तरीके को इतनी तेजी से बदला है G21 को, वो मुझे लगता है और भी सुदृढ़ होने वाला है आने वाले वर्षों में। Absolutely. So let's also shift focus to other aspects. Now, Dr. Rai, let's talk about cryptocurrency. We know that cryptocurrency has been used for illicit trade, drug trafficking, terror financing. How do we evolve a common framework and agreement between nations to stop the misuse of cryptocurrency? First of all, I would like to express my gratitude to you and Mr. Manoj for inviting me, and the Sansad TV for inviting me for a panel discussion with the dignitaries. Pleasure having you, sir. Are you able to hear me? Yes, sir. जी So I also would like to express my thanks to the nation and particularly the Honorable Prime Minister and the diplomats who has worked out such a 94-page daily statement there. It's a wonderful document. All the issues have been covered comprehensively. Now, the technology has become a important and the central theme of whatever activity we do, whether it is a diplomacy or it is a defense or a civil, all kind of economics there. It has become a central theme of the entire activities there. You can't talk about ecosystem without the technology there. And we all know that the technology, people say that it's a fifth domain. The other domains are land, air, sea, and space, and there's a fifth domain. And this fifth domain is very, very complex. It drives the other four domains there. Now, the crypto technology has become a very essential aspect of the technology today, along with other emerging technologies like artificial intelligence and the other next generation communication there. There has been a lot of issues when you talk about the cryptocurrency, tracking those cryptocurrencies. This entire thing encrypted there. The machines are lying somewhere else, transactions are happening somewhere else, and I can enter the transaction from India, and I can do the transaction somewhere in Japan or Iceland or anywhere else. And this crypto technology has become part and parcel, integral part of fintech world there, whether you talk about the UPI or you talk about a swift international monetary transfer. Anything we talk about in the financial sector, the crypto has become very, very important aspect there. And everyone is talking about digital currency. US brought out a stable coin, some other brought about it. And India is also trying to talk about the CBDC there. We have announced CBDC on a very, very pilot kind of a stage. So crypto has become a very, very kind of a standard technology, an important technology when we talk about the finance and in general in other aspects of the economy which is driven by technology. Now, the entire international world, finance world need to work in a seamless manner there. You are right when you say that the crypto was being used largely by for nefarious activity, whether it is a terrorism or for other kind of a contrabands or in dealing in an underground kind of economy there. And therefore, and this has become an important aspect there. So the international agreement, not only for this usage, but to track those currency, it has become is a need of the hour today. And that's why I think this 34-page document, this carries a statement on the cryptocurrency is very, very important. Now, our CBDC has to be recognized by other countries also, the way rupee is recognized or international currencies are recognized. Therefore, each country is announcing CBDC. For that purpose also, having a international kind of arrangements, understanding and expressing the need which document has said it, is very, very important that we must have a common standards, a common mode,
and a kind of a common protocols and the interfaces for the digital currency, because that is the need of the day, and that is the what technology is there today and is going to be adopted by over every activity there. So the cryptocurrency agreement or the cryptocurrency mentioned in 34-page document joint statement is a milestone. So far we had a different view, different kind of thing. It's a very important milestone. जी And I must give you one more reason there. जी Whenever we talk about the cryptocurrency, it was a part of a dollarization program, because most of the crypto things were in dollar. Whether you do in China, do in India or Middle East or anywhere else, Europe, it used to be in dollar. So the agreement in cryptocurrency will also enable other currency to come up, to get more important. That's what the world and is trying to do. The way India is promoting their business interests in the rupee international agreement. So this whole cryptocurrency will help us to move further our program of promoting the Indian rupees as a international currency or the बिल्कुल डॉक्टर गुलशन, क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा मुद्दा दुनिया के सामने, और जाहिर सी बात है G20 के देशों ने उस पर चर्चा भी की और एक सहमति भी बनी। लेकिन मेरा सवाल आपसे डिजिटल करेंसी को लेकर भी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर भी है, साइबर सुरक्षा को लेकर भी है और AI को भी लेकर है, क्योंकि ये सब मुद्दे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चर्चा में आए हैं। शिखर सम्मेलन में तमाम देशों ने भारत की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें खासी रुचि भी दिखाई है, और भारत ने ये संदेश भी दिया है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो मानव केंद्रित विकास की बात हो रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इन पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आज आप वर्ल्ड की इकोनॉमी देखिए, $100 ट्रिलियन से ज्यादा है। डिजिटल इकोनॉमी देखेंगे तो 47% जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है। अगर आप भारत की इकोनॉमी देखेंगे वो हम 3.8-3.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और हम करीब 20% डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी के आसपास है उसका की ना। और ये जो डिजिटल इकोनॉमी है ये बढ़ती चली जा रही है। वर्ल्ड की जो पहली कंपनी 10 कंपनीज हैं, आप इकोनॉमिक सेक्टर में देखिएगा, 10 में से 8 तो टेक्नोलॉजी कंपनीज है। जो मार्केट कैप उनका देखिए, इनको इकोनॉमिक फैक्टर देखिए, 8 टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। तो टेक्नोलॉजी का जो रोल है इकोनॉमी सेक्टर में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो AI की बात करते हैं, हम क्लाउड की बात करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ये सब पैराडाइम शिफ्ट है पिछली टेक्नोलॉजी से, और भारत ने तो ये दिखा दिया कि हम विश्व गुरु हैं जब IT की बात होती है। मैं IT टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं IT एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। हर कंट्री में, हर लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनीज में जो 10 कंपनीज हैं, हमारे इंडियन इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर आप इंडियन इंजीनियर्स को गूगल से निकाल दीजिए, फेसबुक से निकाल दीजिए, IBM से निकाल दीजिए, एप्पल से निकाल दीजिए, उसका इंपैक्ट आप देखेंगे कितना होगा। एक भारत का एक टेक्नोलॉजी उसमें बहुत ही बड़ा रोल है, और इकोनॉमी ऐसे टेक्नोलॉजी ऐसे इंटरफेस कर रही है हर चीज में। जियोपॉलिटिकल भी इश्यूज है, AI के अपने बड़े इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज हैं, कैसे AI यूज करना है, AI पे रेगुलेशन होना है या नहीं होना, इसकी डिबेट होनी है। क्रिप्टो पे क्या रेगुलेशन होना है, क्रिप्टो पे क्या डेटा एक्सचेंज करना है, ये टेक्निकल इश्यूज भी हैं, जिसमें स्टैंडर्ड भी है, टेक्नोलॉजी भी है, प्रोटोकॉल भी है, और साथ में जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी। क्या साइबर नॉर्म होने चाहिए? देखिए, हमने एक रेड क्रॉस, ये एक इंटरनेशनल नॉर्म है, जेनेवा कन्वेंशन है, कि आप एक किसी भी वॉर टाइम में या ऐसे उस टाइम में किसी हॉस्पिटल पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन साइबर अटैक हो रहे हैं। कोविड के टाइम में रैंसमवेयर अटैक हुए, जिससे कि कई लोगों की मौत हुई। कोविड के टाइम में इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे थे हॉस्पिटल्स में। तो ये टेक्नोलॉजी जो है आज की डेट में, ये इज गुड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, इज गुड फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी नेशन, एज वेल एज it has a adverse impact also. इन पे चर्चा होनी चाहिए, इन पे कॉपरेशन होना चाहिए, ताकि हम उस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर इस्तेमाल करके सोसाइटी को बेनिफिट दे सकें और हम
उसकी बेनिफिट उठा के एक वेल्थ क्रिएट कर सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। ये काफी Absolutely. कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे Right, sir. मित्र जो इस पे पैनल हैं, एम्बेसडर साहब, to do the agreement in the technology area is as difficult as we found doing the arrangement in the nuclear time also, nuclear agreement. It's much more difficult. मैं 2001 से एग्रीमेंट में, नेगोशिएशन में लगा हुआ यूएन लेवल पे। यूएनजीजी बनी थी, ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, जो कि साइबर नॉर्म्स के पर एग्रीमेंट करना था। आज 2023 होगी, हम बहुत लिमिटेड एग्रीमेंट हुआ है 20 साल के अंदर। इसके ये बहुत डिफिकल्ट एरिया है, क्योंकि ऐसा है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डायनेमिक चीजें बहुत है, वर्चुअल है, क्रॉस बॉर्डर टेक्नोलॉजीज है, इसके इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि नेशंस ने, और एवरी नेशन इज गेटिंग इम्पैक्टेड बाय दैट, गुड और बैड आल्सो देयर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट this has found one of the important kind of a aspect in the statement, 34-page document there. I'm quite happy, and India has played a big role of being the IT superpower in this area. Absolutely, sir. And also the sense was that there's no good or bad terrorism, Ambassador Mishra. And G20 under our presidency has called for greater international cooperation to deny safe havens to terrorist groups. Certainly a very important message to those providing political and financial patronage to these terror groups. Absolutely. That has been one of the main concerns of India, that has been the world's worst victim of terrorism for decades. And the implicit message is to perpetrators of terrorism, such as Pakistan. And there is, I think, a mention of FATF also. And that's very telling, because Pakistan has been on the grey list, as you know. And so therefore, that's important. Now, but then we have to also be careful in considering it as being of paramount importance, because these kinds of statements are statements of intent, and they are statements to give signals to these perpetrators and to the victims also to be careful and to build an international coalition. But I would say that coalition building always comes truly through sharing of intelligence, sharing of information, sharing of counterterrorism capabilities, and most of that happens in the real world in the bilateral framework and not in the multilateral framework. So therefore, while this is very, very important, it's equally important to have credible and implementable bilateral instruments in counterterrorism cooperation and counterterrorism action. जी बिल्कुल। स्वर्ण सिंह जी, मेरा सवाल आपसे बांग्लादेश को लेकर है, क्योंकि इस शिखर सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश को आमंत्रित किया, और जिस प्रकार से द्विपक्षीय वार्ता हुई दोनों देशों के नेताओं के बीच, उसके भी अपने संकेत हैं। बांग्लादेश की भूमिका को आप G20 शिखर सम्मेलन में कैसे देखते हैं? क्या पहलू है इसका? देखिए, बांग्लादेश को दक्षिण एशिया का इकोनॉमिक मॉडल मानना शुरू हो चुके हैं लोग यहाँ, क्योंकि बांग्लादेश का जिस तरह से आर्थिक उदय हुआ, जब बदलाव वहाँ आया है, और जल्द ही बांग्लादेश एक, जिनको हम मिडिल इनकम इकोनॉमी कह रहे हैं, कि वो बनने वाला है। तो उस नज़रिए से, क्योंकि ये आर्थिक व्यवस्थाओं का सम्मेलन है जी, उसमें दक्षिण एशिया में सबसे सक्षम आर्थिक व्यवस्था कहाँ पर है, उस देश को जोड़ना अपने आप में एक तरह से स्वाभाविक है, उसमें जोड़ना उनको। और उसके साथ साथ बांग्लादेश जनसंख्या के नज़रिए से भी भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा दक्षिण एशिया का देश बनने जा रहा है, जिस तरह से प्रोजेक्शंस हैं आने वाले समय में। तो उस नज़रिए से भी उसको G21 में जोड़ना शायद ज़रूरी था। तो जो बाकी दक्षिण एशिया के देश हैं, शायद उनको यदि चुनाव करें तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश को ही उसमें आप चुनाव करेंगे, कि इस तरह के बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं के यदि शिखर सम्मेलन में कुछ और देशों को आप जोड़ना चाहेंगे, जैसे नाइजीरिया को जोड़ा गया अफ्रीका से, वो भी एक बड़ी इकोनॉमी है और तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और अर्जेंटीना को जोड़ा गया जिस तरह से। तो चुनाव यही था कि जो और भी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों से, जो उभरती हुई एक तरह से अर्थव्यवस्थाएं मानी जा रही हैं,
उनको अपने साथ जोड़ा जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में और भी कई चीजें आपस में तालमेल बनाने की हैं, उसमें बहुत सुधार हुआ है पिछले कुछ समय में। तो सुनने में आया कि शायद 3 और संधियों पर हस्ताक्षर हुए हैं बांग्लादेश के साथ। पर बांग्लादेश उन सब देशों की एक लिस्ट में शामिल है जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं मेहमान की तरह से, और वहां अपने अपने क्षेत्रों में उनको एक अच्छी उभरती हुई इकोनॉमी के नजरिए से देखा जाता है। दक्षिण एशिया में उसी तरह से बांग्लादेश को देखा जाता है। तो ये जो भारत का लगातार कोशिश है कि सभी देशों से, आज जो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां हैं जैसे अमेरिका है, देखिए उनके साथ भारत का कितना अच्छा तालमेल बना है कि वो राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं, वो 1 घंटे में ही उनकी परस्पर द्विपक्षीय बायलैटरल बातचीत होती है भारत के प्रधानमंत्री के साथ, जिसका आप देखें आउटकम 29 पैराग्राफ का एक रीड आउट स्टेट डिपार्टमेंट इशू करता है उसके बाद, जिसमें विस्तृत जानकारी है कि किस किस एरिया में किन किन चीजों पर भारत और अमेरिका मिलकर काम करना चाहते हैं। आज उसका दूसरा नतीजा सामने आया कि एक इकोनॉमिक कनेक्टिविटी कॉरिडोर और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की बात हुई, जिसमें अमेरिका, भारत, यूएई और सऊदी अरेबिया जुड़ना चाहते हैं। तो ये जो लगातार कोशिश है कि बड़ी शक्तियों से तालमेल बने, उभरती हुई आर्थिक व्यवस्थाओं के साथ तालमेल बने, ग्लोबल साउथ को आपने सेंटर स्टेज लाया, ग्लोबल साउथ से आपका तालमेल बन रहा है, जो छोटी कम विकसित देश हैं उनके लिए भी ध्यान रखते हुए ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो एक उभरती हुई शक्ति के नजरिए से मुझे लगता है कि सभी देशों से एक परस्पर गर्मजोशी वाला, दोस्ती वाला जो व्यवहार है और जो आपस में तालमेल बनाना है, वो इसमें साफ जाहिर आता है भारत की इस कोशिश में। और उसके साथ साथ मुझे लगता है जो बात शायद बड़ी खुलकर नहीं कही जा रही वो ये कि जब कोई देश इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी शक्ति की तरह से उभरता है तो उसके लिए यह भी जरूरी होता है कि उसके अपने नागरिक, जो उसकी जो जनमानस है, वो उससे जुड़े और ये बात समझे कि क्यों भारत आने वाले समय में अपना जो ध्यान है, अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपनी जो प्रयत्न है, वो क्षेत्र के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो चिंताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनमें लगाने वाला है। तो क्या ये आम जनता को ये समझ आता है? क्या आम जनता विदेश नीति के इस नई सोच को समझती हैं और समर्थन करती हैं? ये पूरा जो 10 महीने से चल रहा है, जिसको प्रधानमंत्री या पीपल्स फेस्टिवल भी कह रहे हैं, वो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच तो है, पर जनमानस को, जनता को उसके साथ जोड़ने की भी एक तरह से उदाहरण है कि किस तरह से पूरे नागरिकों को आप विदेश नीति में जो आपके जो आने वाले उद्देश्य हैं, जो आपको बहुत ज्यादा उससे जोड़ने वाले हैं, आपका ध्यान वहां जाएगा, रिसोर्सेज वहां जाएंगे, तो जनता उसको समझे और उसका समर्थन करे। उस नजरिए से भी मुझे लगता है कि ये इसकी एक बहुत खासियत है, किस तरह से भारत ने इसको पूरा 60 शहरों में 220 के आसपास इवेंट किए हैं। वही इवेंट नहीं है, उसके बाद बहुत से इवेंट अलग हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज में, मैं यूनिवर्सिटी से हूं तो 100 यूनिवर्सिटीज में G20 को लेकर इवेंट हुए हैं। तो वो बहुत से पूरे देश में इतनी चीजें हुई हैं कि एक जागरूकता जो देश की है कि विदेश नीति में क्या करना है और ये कैसे सब करना जरूरी भी है, उसको लेकर भी मुझे लगता है कि पूरा बदलाव भारत में आया है और वो भारत को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सक्षम बनाने में बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो भी एक चीज उसमें मुझे लगता है जुड़ी है। और जाहिर है कि पड़ोस में यदि दूसरे देश भी इसका समर्थन करते हैं, भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे अभी कहा गया कि जब चीन ने एक नया मैप जारी किया हाल ही में, तो न केवल भारत ने उसकी एक तरह से क्रिटिसाइज किया, उसके साथ साथ कितने दूसरे देशों ने भी उसके बारे में क्रिटिसाइज किया। तो दूसरे देश जो आमतौर पर चुप रह जाते थे इन बातों पर, वो भारत को देखते हैं कि भारत सीमा पर 3 साल से ज्यादा खड़ा है चीन के सामने, उनको भी हौसला होता है। और शायद ये एक तरह से कहा गया जैसे कि शायद तालमेल है ये सभी पड़ोसी देशों का, चीन के पड़ोसी देशों का, वो मिलकर ये बात कहने को आज तैयार हैं। तो ये भारत की बदलती हुई छवि और प्रभाव का ही मुझे लगता है कि एक उदाहरण है। जी बिल्कुल। जहां तक चीन की बात है, चीन का जो रूप है वो दुनिया के सामने है। लेकिन मैं आपसे एक बात स्वर्ण सिंह जी और समझना चाहता हूं, क्योंकि भारत मंडपम से जो संदेश निकले हैं उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का संदेश भारत ने दिया है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत है, उसका संदेश भारत ने दिया है, भारत की सांस्कृतिक धरोहर का संदेश भारत ने दिया है। और सबसे बड़ी बात आज जो देखने को मिली, प्रधानमंत्री जब संबोधन कर रहे थे तो जो उनके आगे पट्टिका लगी थी उस पर भारत लिखा था। यह भारतीयता का जो संदेश है,
इसके क्या मायने हैं? मुझे लगता है ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भारत की विदेश नीति जो है वो मार्केट या प्रॉफिट ड्रिवन वाली बात नहीं है। उसमें वो सभ्यता और संस्कृति का दृष्टिकोण है जो उसके पीछे पूरा उसको ये क्षमता देता है कि वो किस तरह से बहुत सी चीजें दूसरे देशों को समझा पाता है, कन्विंस कर पाता है, अपने साथ ले पाता है। अब देखें, सुबह ही आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत 2500 साल पुरानी एक शिलालेख से की, जिसको प्राकृत में उन्होंने पढ़ा। लिखा हुआ है कि लोकता हित मुक्ति, जिसका मतलब ह्यूमैनिटी का इंटरेस्ट जो है वो हमको सबसे पहले आगे रखना चाहिए। और ये बात कई और हमारे क्लासिक्स में भी है कि भारत का जो दर्शन है वो अपने आप को विश्व से जोड़कर देखता है। यही कारण है कि हमारे संविधान में भी आप देखें कि 51 जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया कि भारत की जो सक्सेसिव जनरेशन है लीडरशिप की, वो इंटरनेशनल की बात नहीं करते, वो ह्यूमन रेस की पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए काम करेंगे। तो ये जो पूरी मानव जाति से जुड़ने का संस्कृति का दृष्टिकोण भारत का है, सभ्यता का दृष्टिकोण है, वो उभार कर हर पहलू में सामने आता है। जब भारत इस तरह से कोई बहुत बड़ा शिखर सम्मेलन या कोई बैठक करता है, उसमें चाहे वो मेजबानी की बात हो, मूर्तिकला की बात हो, आप देखें कि वहां मंडपम में एक एग्जीबिशन है, ये दिखाती है वो एग्जीबिशन कि भारत में लोकतंत्र का इतिहास 7000 साल पुराना है। तो ये जो लोकतंत्र और विदेश नीति को आप जोड़ते हैं पूरी सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, उसका जो असर है, उसका जो कन्विक्शन, जो कॉन्फिडेंस आपका है, जो तरीका है समझाने का अपनी बात का, वो बहुत ही मुझे लगता है सक्षम होता है। इसीलिए शायद आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सहमति इतनी जल्दी बना सका है भारत। जी, Absolutely. Also, Ambassador Mishra, as the mother of democracy, our belief in dialogue and democratic principles has been unwavering since time immemorial. Our global conduct is rooted in the fundamental principle of Vasudhaiva Kutumbakam, which means world is one family. What has India done differently during its presidency or is doing differently? Oh, absolutely. We just heard about the domestic aspect, which is having more than 200 events in more than 60 cities. Now, that's a huge thing because India is 1/6 of humanity. So if you are doing that, you are taking this to a very significant chunk of the global population. That's domestic. Now, what is international? India has positioned itself quite rightly as the voice, not the leader, but the voice of the Global South. We had the Global South Summit as a precursor, as a curtain raiser to our presidency of the G20 earlier in the year. Now, we have carried this forward in very meaningful ways, in a leading position, as our brilliant Minister of External Affairs has said in his book. India is wanting to shift from a balancing to a leading role, and what the Prime Minister calls Vishwaguru. Now, what are the examples? Now, when the Chandrayaan-3 lands on the surface of the moon, that is a Shubh Muhurt for India. And the Prime Minister was in Johannesburg, and his comment was, this is not just for India and the people of India, it is for the entire humanity. And significantly, he also said it's for the South. And then he announced the proposal for a global space consortium, the BRICS Space Consortium at that time. Now, I thought that was brilliant diplomacy, and that is what Vasudhaiva Kutumbakam means. And I am a little surprised that the Chinese, who are very seasoned diplomats, they raised that petty objection to the phrase Vasudhaiva Kutumbakam. Now, that didn't make China look very good, because it's talking about we are all one in it together. The world is one family. Is China trying to give a different message that China is different from the rest of the world? Is it Chinese exceptionalism? And that's what the world is struggling against, Chinese exceptionalism and Chinese aggressive behavior. And I thought that was a brilliant strategy by India, very Chanakyan and very subtle, and done in a way that it becomes very difficult for others not to agree with it. I mean, when you were saying that the world is one family, yes, it is one family. And then the declaration is ample evidence of the fact that we could have a declaration
At one stage, it looked very tough. I have something to say on that, how it might have happened, but I'll stop for now. जी बिल्कुल। डॉक्टर गुलशन, मेरा सवाल आपसे है एफएटीएफ को लेकर, क्योंकि यह मुद्दा भी कहीं ना कहीं चर्चा में आया और सहमति के साथ इसको भी साझा घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। एफएटीएफ का यह मुद्दा क्यों जरूरी है आज दुनिया के लिए, क्या पहलू है इसका? हम बात फिर वहीं आते हैं जी। जो आपने शुरू में मेरे से पूछा था, क्रिप्टो करेंसी। आज जो है अंडरग्राउंड इकोनॉमी जो है वो करीब करीब $500 बिलियन की अंडरग्राउंड इकोनॉमी है। ये साइज है करीब करीब अंडरग्राउंड इकोनॉमी का, जिसमें आपके हर तरीके का प्रोडक्ट अंडरग्राउंड इकोनॉमी में बिकता है क्रिप्टो करेंसी से। और ये जो क्रिप्टो का मैटर है, 70% जो इसकी जो यूज होता है वो टेररिस्ट मनी ट्रांसफर के लिए ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको ये पता लग सकता है, वो ओपन लेजर होता है, ये पता लग सकता है कि इतना पैसा ट्रांसफर हुआ, कहां से गया और कहां से आया यही नहीं मालूम हो। जो बैंक में ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें ये पता होता है किसने पैसा भेजा और किसको पैसा मिला। और क्रिप्टो जो करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इसका रिवर्स होता है। सो 70% मनी जो आजकल ट्रांजैक्शंस हो रहा है वो टेररिस्ट पर्पस के लिए हो रहा है, और कंट्राबैंड आइटम्स के लिए हो रहा है, एमुनिशन के लिए हो रहा है। इनफैक्ट सम ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल इज आल्सो बीइंग सोल्ड यूजिंग क्रिप्टो करेंसी आल्सो देयर। सो एफएटीएफ में ये फैक्टर जो है ये बहुत जरूरी है कि आपका मनी ट्रेल हो, इकोनॉमिक थिंग्स प्रॉपर हो, ब्लैक मनी आपको उसको स्टे कर पाए और टेररिज्म के लिए पर्पस मनी ना हो। ये एस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी पे एग्रीमेंट करना, उसको ट्रेस करना, इसके ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना, वो बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए मेरे ख्याल में ये जो ओवरऑल जो स्टेटमेंट जो है ये पूरे विश्व के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे सिर्फ भारत को ही इम्पैक्ट नहीं होता, इससे अदर कंट्रीज को भी इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि और कंट्रीज में ये सब नहीं होता, वहां भी ऐसा ही होता है। आप देखिए जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो जाते हैं, निकलते हैं, तो बाहर से भी निकलते हैं। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड सब तो बाहर ही हैं, हम तो सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे बनते नहीं है, सर्वर सब मॉनिटर बाहर होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। आपको अगर एफएटीएफ में सक्सेसफुल अरेंजमेंट करना है तो टेक्नोलॉजी पे कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी पे एक इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। बिकॉज ये अब इंटर क्या कहते हैं, कंट्री ये काइंड ऑफ ए टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करती आती है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा उन्होंने ये इंतजाम किया है। मैं एक चीज आपको बताऊं कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी वो है कि जिसमें किसी कंट्री को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, और कोई ऐसा नहीं कह सकता कि एक कंट्री टेक्नोलॉजी पे सुपर पावर है, बाकी के पास नहीं है। इंडिया के पास अपनी आईटी सुपर पावर है, अमेरिका के पास दूसरी टेक्नोलॉजी है, और आप देखेंगे चाइना एआई में कितना काफी बढ़ गया है, एंड अदर कंट्रीज और उस भी आगे पीछे और भी काफी रेस में है। सो एंड ये सब जो टेक्नोलॉजीज हैं एफएटीएफ के एग्रीमेंट में, इन कंट्री अमाउंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाती हैं, जो कि इकोनॉमी फैक्ट को रेगुलेट करने की। Absolutely, sir. You also talked about economy, and this takes me to another point, Professor Singh. India assumed the G20 presidency when most member nations are facing the threat of recession, and India is only the bright spot in the otherwise gloomy landscape. Now, we've been saying that Delhi Declaration has been incredible, unimaginable. How did India leverage its position as fastest growing economy in the world to develop consensus on all these critical issues? Thank you. I think that's an important point to underline. When we look at the countries and the largest economies, facing difficulties because of pandemic followed by Ukraine crisis, India is an unusual example of still showcasing right now, for example, 7.2% growth rate. Reserve Bank of India is projecting 8.2% for first quarter next year. Compared to other countries, I mean, look at United States growing at 1.8%, Japan 2.7%, Germany 1.8%,
China, of course, around 4%. So the fastest growing economy and the young demography makes India really attractive locomotive of global growth in that sense, and therefore an ideal nation to then be holding the presidency of G20 nations. And I think that explains, other than, as I was explaining, the civilizational and cultural heritage that India has and how foreign policy is grounded in that philosophy, the current advanced technology power image of India, the fastest growing economy image of India also contribute to making India's foreign policy far more effective in having that heft to contribute to building consensus in such large number of issues at much faster pace. And of course, that explains why much of the G7 advanced countries are today exploring more and more opportunities to find partnerships with India. India's launching of Chandrayaan-3 followed by Aditya L1 on the eve of G20 summit again showcases that image of India not only an ancient civilization but also extremely rapidly growing technological power in that sense. So today India is willing to engage in a dialogue on thinking of a creation of global policies on cryptocurrency, for example. That is the credibility that comes out of, the new India that we are seeing in that sense. And yes, at that time, India is seen as a perfect candidate then to be able to guide the destiny of these large economies, which are facing very, very severe challenges. Climate change, 80% of carbon emissions are from these G20 economies, and they must act fast. We are finding that climate change is becoming a reality in everyday life, in everyone's life now. And unless, we resign to the fact that there is now irreversibility of the climate change and we are going to be really doomed in future, there is an urgent need for example, climate finance, which has been going on from 2015 Paris climate summit. Nothing much has happened. India has, right now in this joint declaration, final declaration, tried to transform the very methodology of how climate finance have to be organized, expand at that kind of raising of capital by including other countries, resourcing from private sources. How can you then raise capital and ensure that technology transfers can happen, not just in countries like India, China, which are already working hard for the transition towards green economy, but also other countries that are rapidly going to go into the phase of industrialization. How can they also receive possibilities of technology transfer, which is available in advanced countries, needs to be transferred to these countries. Otherwise, they will start using coal and conventional style of production and again lead to more climate crisis in the coming times. So the holistic nature, the unison approach, the fact that unless you take everybody on board, and that is why Sabka Vishwas, that experimentation that was happening at the home is now being catapulted to the global level, that unless you take everybody on board along with you, howsoever powerful the G7 economies may be, they cannot tackle international crises of climate change, of terrorism, of all other kinds. And therefore, if you have to fight the challenges, including recession and others, you have to take other countries along with, and countries that were normally seen on the margin. Africa is now on the center stage. They are sitting together and directly negotiating with G7 countries in this new format of G21. So India, in that sense, has proven that it had the ability, intention, and of course, the outcomes are clearly visible, that India has been able to do a lot in terms of transforming the very character, the very nature, the very structure of G20 summit meetings, how they used to focus largely on profit-driven, market-driven industrialization, urbanization, to now human-centric development. Environmental friendly, one of the important initiatives talks about financing cities around the world to make them socially inclusive, economically sustainable, environmentally friendly. So that whole era of urbanization, which has created chaos in environment, can now be diverted to be much more friendlier in terms of environment friendly, sustainable in terms of economic sustainability of their development, and of course socially inclusive. So this kind of very fundamental transformation in the thinking of what India wants G20 to do and in what direction India wants to take G21 countries is a reflection of India being really ready to come. And, this was a summit that many leaders have now said to prepare India for the world and then prepare world
for the India as it is rising. जी बिल्कुल स्वर्ण सिंह जी, जिस प्रकार से दुनिया में कोरोना संक्रमण के बाद आर्थिक चुनौतियां दुनिया के सामने उभरी और उस सबके बीच भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को न केवल संभाला बल्कि दुनिया की तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत बन गया है और दुनिया के आर्थिक संपन्न G20 के देश इस उपलब्धि को करीब से देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जाहिर सी बात है, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो या दूसरे तमाम मुद्दे हों, भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि मानवता केंद्रित विकास पर अधिक जोर दिया है। लेकिन एक सवाल मेरा जितेंद्र नाथ मिश्रा जी आपसे है, क्योंकि आतंकवाद का मुद्दा दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और इस सहमति जो साझा सहमति पत्र है, इसमें एक मुद्दा यह है कि ये G20 के देश आतंकवाद किसी भी रूप में हो उसकी निंदा करता है। ये आतंकवाद के किस रूपों की बात हो रही है? अब कौन से रूप हैं या पहले कौन से रूप रहे हैं? आतंकवाद सिर्फ मनुष्य के क्षेत्र मतलब थ्रू ह्यूमन एक्शन नहीं होता है। साइबर अटैक्स भी, साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म है और एआई के थ्रू भी हो सकता है। मैं टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं जानता, इसके भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं। फॉल्स न्यूज़ नैरेटिव, ये भी आतंकवाद हो सकता है। और चीन ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही है कि दूसरे देशों के सिस्टम्स को हैक कर दे, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को हैक कर दे, वो भी एक किस्म का टेररिज्म है। तो ये मैंने इस प्रश्न का जवाब तो मैंने दे दिया है कि मल्टीलैटरल स्तर पे ये सब बोलना बहुत अच्छा है क्योंकि इससे अवेयरनेस बढ़ती है, लेकिन एक्शन जो है रियल एक्शन होगा बायलैटरल स्तर पे। मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी कहना चाह रहा था, ये मेरी प्रतिक्रिया है, मेरा रिस्पॉन्स है। ये जो बात हुई हार्ड पावर की, इंडिया की बढ़त जो एक ब्राइट स्पॉट है, अभी कृति जी ने कहा था और प्रोफेसर सिंह ने भी कहा था। देखिए, भारत शुरू से ही अपने आप को ग्लोबल साउथ की वॉइस मानता आया है। नॉन लाइन मूवमेंट के टाइम में वो था। चीन कभी भी ग्लोबल साउथ की वॉइस हो ही नहीं सकती क्योंकि वो ग्लोबल साउथ की है ही नहीं। वो तो एक कैंप में थी पहले, कम्युनिस्ट कैंप में, और अब चीन बहुत आगे बढ़ चुकी है साउथ से, उसका जीडीपी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो वो साउथ की तो हो ही नहीं सकती किसी भी डेफिनेशन से। तो इंडिया थी, इंडिया की लीडरशिप इंडिया के पास थी, और अब ऐसा हुआ है कि इंडिया का हार्ड पावर, उसमें बढ़त होने से जब हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं या मदर ऑफ डेमोक्रेसीज की बात करते हैं, तो ये दुनिया ये बहुत गौर से सुनती है और इस पर ध्यान देती है और शायद थोड़ा सा विश्वास भी करती है क्योंकि हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी आ गए। हम देखिए, साउथ पोल में जब लैंड हो गए मून के चंद्रमा पर, ये पहला देश है, तो कुछ तो है भारत में लीड करने के जी। तो ये सबको समझ में आ रहा है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है भारत में, और इस G20 के जरिए भारत ने वही दुनिया को बताया है कि भारत की संस्कृति, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को जो कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है। दरअसल दुनिया ने भारत की राजधानी दिल्ली में इतिहास बनते हुए आज देखा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भारत में हैं। भारत पूरी दुनिया की पावर का एपिसेंटर बनकर उभरा है। भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष नेताओं ने जलवायु मोर्चे सहित विश्व के समक्ष मौजूदा विभिन्न चुनौतियों से निपटने की तत्काल जरूरत पर बल दिया है। मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास पर सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को विश्वास और भरोसे में बदलने के आह्वान के साथ दुनिया को सबका साथ, सबका विश्वास का मंत्र दिया। और दोपहर के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति बन गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सतत भविष्य के लिए सतत विकास लक्ष्यों, हरित विकास समझौते की प्रगति में तेजी लाना चाहते हैं और 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों को मजबूत करना चाहते हैं, भरोसा जगाना चाहते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में आए दुनिया भर के मेहमानों का स्वागत किया। जी कृति जी। Well, absolutely, Manoj ji. As they say that we are charting together the journey of shared aspirations and dreams, and India's G20 presidency, of course, talks about Vasudev Kutumbakam, where world is one family.
On that note, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sansad TV. Thanks a lot for joining us, Ambassador Mishra, Professor Singh and Dr. Rai. I'll continue.